Now that we have done the details of the Council of Ministers, and we'll have a couple of more sections on them in the coming videos, but now we focus ourselves on the Prime Minister and the Chief Minister, and we'll understand how their appointment happens. Okay, for the other ministers, you have already seen the details, but what about the Prime Minister and the Chief Minister? And we'll just focus on the appointment aspect in this particular video, because that would require certain greater depth and certain past examples also, so that you can relate to the point that how is it happening. The first thing that you need to remember is that as such, for the selection or appointment of PMCM, there is no specific procedure given. ठीक है, there is no specific procedure. But there are two articles which talks about it, article number 75 and 164. We have seen it earlier, which only says that PM will be appointed by President and that CM will be appointed by Governor. So it does mention that who would be the appointing authority, but how it is going to happen is not actually mentioned. So with this, the question that we'll figure out is that can the President, Governor appoint anyone as PM or CM respectively? I hope you're getting, we are talking, when we talk about PM, it is about President, CM, Governor. So I'm just giving a slash and writing accordingly. So definitely there can be a question, right? What will be the answer to it? Definitely the answer is no. Randomly वो किसी को तो नहीं बना सकते. फिर क्वेश्चन आएगा, देन हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. अब हाउ में क्या होगा कि एक काइंड ऑफ कन्वेंशन चला आता है बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम. जो एक कन्वेंशन चला आता है वो ये है दैट द प्रेसिडेंट or the governor will appoint that person as prime minister who is the leader of majority party, where in Lok Sabha or Legislative Assembly. ठीक है, so only that person will be appointed as PM or CM by the president or governor who is the leader of the majority party, the party which is having the majority in the लोकसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली. वो पार्टी जिसको अपना लीडर चुनती है उनको उन्हीं को अपॉइंट करना होगा एज द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर. If the party has a clear majority, things are sorted because they will have a leader and accordingly the person will be appointed as the PM or the CM. But then again a question comes, what if no party has clear majority? That will also be a case, that can be a case, right? So what will happen in this case? There will be the application of discretion. We have done the discretionary power of president and governor. Those who have seen the previous video in a sequence will understand this, and therefore it is important to do it in a sequence because we are doing it as a story, linking every part of what we have done earlier and what we are going to do in the coming classes. Now in such cases, what will happen if no clear majority lies with any party? Then what will happen? Then president or governor may exercise the personal discretion that we have seen called as the political emergencies. Not that emergency which happens like the exigencies, certain different situation. अब इस केस सो ये पर्सनल डिस्क्रिशन चूज़ करके सेलेक्ट या अपॉइंट कर लेंगे PM या CM को. अब इस तरीके के केस में मोस्टली दो तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाता है. व्हाट टू काइंड्स ऑफ पीपल? ईदर द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन और यू विल से द कोलिजन. अगर एक क्लियर पार्टी को नहीं है तो भी जो भी उसमें से लार्जेस्ट पार्टी होगी या उस कोलिजन में से जो लीडर बन के आएंगे उनको चूज़ कर लिया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा. ठीक है, इन लोकसभा और असेंबली. और द अदर थिंग दैट कैन हैपन, द अदर पर्सन एक्चुअली इन्हीं दोनों में से किसी को चुनते हैं. उसके बाद क्या होता है,
ऐसे I think it might be confusing for you, so just allow me. Yeah, so leader of the largest party, or very sorry, there's some problem, it's getting repeated again. Yeah, leader of largest party or leader of coalition, दोनों में से किसी को चुन लिया जाएगा. I'll give you some past examples in both the cases. उनको चुन लिया जाएगा and then what the president or the governor will ask this particular person to ask them to seek. I'll write him only, him or her you can say. So ask the person जिनको चूज़ किया जाएगा as PM और CM to seek majority, or in other words you can say vote of confidence in the house. What is the time? Within a month. In case there is any kind of confusion, I'll just repeat it again so that things are clear to you. The first thing what will happen, firstly appointment has to happen by the president and the governor. Can they appoint anyone? No. How they will do it? Usually they use the convention and they appoint the leader of the majority party. So लोक सभा या असेंबली में जिस पार्टी को मेजॉरिटी क्लियर कट मिल जाती है उसके लीडर को आराम से PM या CM बना दिया जाता है. अगर if there is no clear majority with any particular party, then the discretion, personal discretion of the president or the governor is used. How do they use the discretion? How do they choose? In this case, they will either appoint the leader of the largest party or the leader of the coalition party, ठीक है, as the PM or the CM, and will ask that person that you seek the vote of confidence in the house within a month. अगर हम कुछ पास्ट एग्जाम्पल्स की बात करें तो येस, पास्ट एग्जाम्पल्स में ऐसे हुए हैं जहाँ पे लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी को भी चुना गया है, कहीं कहीं पर कोलिजन लीडर को चुना गया है. अच्छा, फर्स्ट टाइम एक्चुअली क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो यूज़ हुई ना, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें 1979 में फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है. उन्होंने अपॉइंट करा चरण सिंह को, हु वाज द कोलिजन लीडर. हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है. वाज द कोलिजन लीडर एज द PM जब पुरानी सरकार जो है वो गिर गई थी. अगर हम वही चीज़, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं, बट अगर हम स्टेट्स की भी बात करें तो अगर हम स्टेट्स के केसेस में देखेंगे, सो गवर्नर हैड आज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन सर्टेन केसेस. फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में 1951, राजस्थान में 1967, हरियाणा में 1982, जहाँ पे उन्होंने लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने बोला है. अगर हम कोलिजन लीडर की बात करें तो भी गवर्नर, और ये सब डेफिनेटली स्टेट लेवल की बात हो रही है तो हम गवर्नर्स की बात कर रहे हैं. 1967 में पंजाब, 1970 में वेस्ट बंगाल, 1978 में महाराष्ट्र, जहाँ पे कोलिजन लीडर को सरकार बनाने के लिए कहा गया है. अब एक क्वेश्चन ये भी और रहता है कि इज़ दिस द ओनली केस वेयर इन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज़ यूजिंग द डिस्क्रिशन. It is one of the cases, but is it the only case? No. So there are other instances also, ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल जजमेंट ली जा सकती है by the president or the governor. And when will that happen? Let's say if PM or CM dies suddenly और पहले से कोई successor decided नहीं है, ठीक है, and there is no obvious successor to be decided कि कौन आगे बनेंगे. तो इस केस में भी जो इंडिविजुअल जजमेंट है वो यूज़ किया जा सकता है. कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने देखा भी था. एग्जाम्पल जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, ठीक है, असैसिनेशन, क्योंकि दैट वाज वेरी सडन, तो उसके बाद जो है राजीव गांधी को सक्सेसर बना दिया गया एज दी प्राइम मिनिस्टर. उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे ज़ैल सिंह, उन्होंने बनाया, जबकि अदरवाइज द पर्सन जो और दूसरे लोग बनाए जा सकते थे, पीपल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बनाए जा सकते थे कि किसी को टेम्प्रेरी उस टाइम के लिए कर दिया गया. ऐसा कुछ भी उन्होंने फॉलो ही नहीं करा, गांधी जी को बना दिया गया एंड देन उनकी पार्टी ने बाद में उनको एक्सेप्ट भी किया. अच्छा, लेकिन अब क्या है कि इफ़
यहाँ पे इंडिविजुअल जजमेंट तो ठीक है, लेकिन नाउ इट इज़ यूजुअली व्हाट इज़ हैपनिंग कि इफ़ रूलिंग पार्टी वो अपने से किसी लीडर को इलेक्ट करती है, अगर उनके पुराने जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो अगर वो अपने से किसी को इलेक्ट करती है, न्यू लीडर करती है ऑन डेथ ऑफ द प्रीवियस पीएम और द सीएम, देन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर हैज़ नो चॉइस बस टू अपॉइंट द सेम पर्सन. अगर वो खुद से पार्टी चूज़ करके उनको दे देती है तो उनको उन्हीं को अपॉइंट करना होगा, अदरवाइज़ वहाँ पे उनके पास एक इंडिविजुअल जजमेंट का डेफिनेटली एक चॉइस है, ऑप्शन है. ठीक है. एक और चीज़ जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे जो पीएम या सीएम हैं, ये क्वेश्चंस आता है स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम में भी कि वो किस पार्टी को बिलोंग कर सकते हैं. इंडिया में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे जो पीएम या सीएम हैं वो किसी भी, दे कैन बी मेंबर ऑफ एनी हाउस. ठीक है, पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, स्टेट में भी किसी भी लेजिस्लेचर के मेंबर हो सकते हैं, काउंसिल या असेंबली. यूजुअली दे आर फ्रॉम लोअर हाउस, बट देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे अपर हाउस से भी हमारे पास मेंबर्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, पीएम फ्रॉम राज्यसभा, सो वी हैड इंदिरा गांधी, वी हैड देवगौड़ा, and we also had Manmohan Singh. These PM were from member of Rajya Sabha. States के case में भी similarly we have seen many examples of CMs from the Legislative Council like C. Rajgopalachari, B. Gupta, Mr. Mandal, and then Morarji Desai. काफ़ी ऐसे examples रहे हैं. हम center पे भी focus कर रहे हैं because usually question यहाँ से आता है. So this is also what you have to remember. एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि कोर्ट्स ने कुछ चीज़ों पर क्लैरिफिकेशंस दिए. फॉर एग्जांपल 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर अ पर्सन टू प्रूव एनी मेजॉरिटी इन लोकसभा बिफोर अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर. नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी केस में देखा था, आई होप यू रिमेंबर दैट एनी पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर इवन इफ नॉट अ मेंबर बट ओनली फॉर 6 months. ठीक है, तो यहाँ पे भी है यही बात उन्होंने क्लैरिफाई करी कि 1997 में भी सुप्रीम कोर्ट ने करा और उसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को करा था. तो अगर हम इसको शॉर्ट में समझें, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा 1980 में कि नो नीड टू प्रूव, रादर यूज द वर्ड ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन टू प्रूव मेजॉरिटी इन लोकसभा before appointment as prime minister. So how can it happen that president, let's say, first appoint prime minister, then ask to prove majority, है ना, इन लोकसभा जो हमने अभी देखा, that this will happen कि वो उनसे बाद में बोलेंगे कि you prove your majority. तो फिर पहले से उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुन लिए जा सकते हैं. उसके बाद आपको कहा जा सकता है कि कहा जाएगा कि आप मेजॉरिटी प्रूव करो लोकसभा में विद इन जो भी आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, रीज़नेबल टाइम पीरियड दिया जाएगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीएम हैं जो कि इस तरह से ही चुन के आए कि पहले वो अपॉइंट कर लिए गए, बाद में उनको मेजॉरिटी प्रूव करनी थी. लाइक चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा, के गुजराल. दीज हैव बीन सम एग्जाम्पल्स. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1997 ने ये क्लियर कर ही दिया कि इवन इफ अ पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस स्टिल कैन बी अपॉइंटेड एज पीएम, बिकॉज इफ़ दे कैन बी अपॉइंटेड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वो पीएम में भी काउंट ही हो जाएंगे. कैन बी पीएम फॉर 6 months और विद इन 6 months उनको बनना पड़ेगा मेंबर, अदरवाइज वो पीएम से भी हट जाएंगे. This was all about the appointment related to PM and CM. The same goes for the chief minister also. But जैसे जो अदर टॉपिक्स हैं लाइक ओथ, सैलरी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के केस में ऑलरेडी कर ली हैं. सो द सेम थिंग अप्लाइज बिकॉज दे आर द मिनिस्टर्स ओनली. इट्स जस्ट दैट PM और द CM हेड्स, राइट, हेडेड बाय द PM और CM. सो दे हेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो जो उनके लिए जो चीज़ें एप्लीकेबल हैं, कैसे ओथ होगा, कौन एडमिनिस्टर करेगा, वो सब चीज़ सेम है. बस अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट रहेगा यहाँ पे,
और रिमूवल में भी आपको याद रखना होगा, अदर मिनिस्टर्स जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, दे कैन बी रिमूव बिकॉज दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर ओनली, बट पीएम या सीएम को ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते हैं. टिल द enjoy majority they will be there in the office. I hope the pointers are clear to you. Now we'll meet in the next video continuing the topics. Thank you so much. Take care. Bye bye.